Hello everyone, my name is Aishwarya. In the course of Design and Analysis of Algorithms, आज हम थोड़े से और इटरेटिव एल्गोरिथम्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो देखेंगे. सो लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन है while n is greater than 2 and you have something let's say n is equals to under root of n. अगर आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे आज हम ये देखते हैं. हम इस n इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या. कैन वी रीराइट दिस एज n की पावर 1/2 टू दी पावर 1. इज इट फाइन. we can write n under root of n is equals to n to the power 1/2 to the power 1. Whenever this loop will execute for n greater than 2, it will make the value every time under root. Means if under root n, then it will under root, then it will under root, and so on. So we will write this particular thing as n to the power, right? So if it will execute for the first time, the term will become n, the value will become n to the power 1/2. Then if it again it will execute, it will become n to the power 1/2 to the power 2. Again it will be n to the power 1/2 to the power 3. Again it will be n to the power 1/2 to the power 4. If let's say I am executing this k times, let's say if I am executing this instruction k times, what it will become? N to the power 1/2 to the power k, and it will stop when the value will become is equals to 2, as it's written in the condition of while loop, as 2 is written in the condition of while loop. So n to the power 1/2 to the power k is equals to 2 will stop execution. So you have to find the value of k. You have to find the value of k, which is number of times this instruction will execute for n is equals to under root of n, right? So let's try to find the value of k. So it is something like this. What the instruction is, what the equation was, n to the power 1/2 to the power k is equals to 2, it will stop execution. So as it is exponential term, so I am taking log on both sides. I am taking log on both sides 2 base 2. Until unless you are not given any base explicitly, you have to take base 2. So it is something like log of n to the power 1/2 to the power k is equals to log of 2 base 2. This is also base 2, right? What log property says? Log property says that if you have something log of a to the power b base c, then it will be equivalent to b dot log a base c, right? So what I am doing is I am just taking this exponential term on the multiplication side. So 1/2 to the power k dot log will remain same, n to the base 2. N to the base 2 will become, what is the value of log 2 base 2? It is 1. It is 1. So now you can see this is a denominator term 2 to the power k. I am taking this in the numerator 1. So it will be log n to the base 2 is equals to 2 to the power k. You have to find the value for k. Again it's exponential term. So again you can take the log base 2. Right? So it will be something log of log n base 2 is equals to log 2 to the power k, right? Again we will use the property which is this one I have written here. So it will be something log of log n base 2 log is equals to k dot, again make this in multiplication, k dot log 2 base 2. 2 base 2 is 1, so k dot 1 is equals to k, which is equals to k is equals to log of log n base 2. So this is the number of times, and hence it is the time complexity. You can even rewrite it as like this, order of, or you can even say it as big of log n log of log n base 2. So anywhere you have, if you will see any term which is the under root term, you can easily write log of log n base 2, right? You can easily write log of log n base 2. If you will see something like n cube root, then you can write it as log of log n base cube or 3, right? So this is how you can
डायरेक्टली राइट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एनी टर्म विच इज n इज इक्वल टू अंडर रूट n। अब हम कुछ और इटरेटिव प्रोग्राम्स के एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नेस्टेड लूप्स है। क्या है यहाँ पर? 3 नेस्टेड लूप्स है। एक जो एग्जीक्यूट कर रहा है 1 से n तक, एक एग्जीक्यूट कर रहा है 1 टू i तक, और एक एग्जीक्यूट कर रहा है 1 टू n तक। सो आप देख सकते हैं 1 टू n वाले लूप्स तो इंडिपेंडेंट लूप्स है, बट इस लूप को आप ध्यान से देखिए, जे लूप जो है वो लूप डिपेंडेंट है किस पे? एग्जीक्यूशन i वाले लूप पे। ठीक है, जे की डिपेंडेंसी किस पे है? पहले वाले लूप पे, मतलब दिस इज अ डिपेंडेंट लूप। लूप जे इज अ डिपेंडेंट लूप। कभी भी आपको कोई डिपेंडेंट लूप मिलेगा किसी भी इटरेटिव प्रोग्राम के अंदर, आपको उसको करना पड़ेगा अनरोल। क्या करना पड़ेगा आपको? अनरोल। मैं आपको अनरोलिंग सिखाती हूँ कैसे करते हैं। हमें अनरोल का मतलब है हमें हर आई वैल्यू के लिए चेक करना है जे कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा और उसके लिए के कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं पहले देखती हूँ कि i इज इक्वल टू 1 के लिए जे कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। आप देख सकते हैं जब i की वैल्यू 1 होगी जे एग्जीक्यूट करेगा 1 टू लेस देन इक्वल्स टू i। तो जे एग्जीक्यूट कैसे करेगा स्टूडेंट्स? 1 टू लेस देन इक्वल्स टू i। i की वैल्यू क्या है? 1 है। और हर उस j के लिए k कितनी बार एग्जीक्यूट करे? ध्यान से देखो, 1 से n तक, मतलब 1 2 3 4 5 6, कब तक? n तक। जब i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, k चलेगा n टाइम्स। ठीक है, मान लेते हैं i की वैल्यू है अब 2, i की वैल्यू मान लेते हैं 2 है। उसके लिए j कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा? आप देख सकते हैं j 1 के लिए एग्जीक्यूट करेगा लेस देन i विच इज 2, 2 के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो j एग्जीक्यूट करेगा 1 के लिए और 2 के लिए। जब i की वैल्यू 2 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, तब k कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा स्टूडेंट्स? n। जब i की वैल्यू 2 होगी, j की वैल्यू 2 होगी, k कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा स्टूडेंट्स? n टाइम्स। ठीक है, नाउ डू इट फॉर i इज इक्वल टू 3। दिस इज अनरोलिंग, व्हाट आई एम डूइंग इज अनरोलिंग। जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी, j एग्जीक्यूट कितनी बार करेगा? j इज इक्वल टू 1 के लिए करेगा, देन प्लस प्लस j इज इक्वल टू 2 के लिए करेगा विच इज लेस देन 3, देन प्लस प्लस 3 के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो j एग्जीक्यूट करेगा किसके लिए? 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। और हर उस j की वैल्यू के लिए k कितनी बार चलेगा? सेम जैसे पहले किया था कि अगर i की वैल्यू 3 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, k विल एग्जीक्यूट 1 2 3 4 5 n टाइम्स। i की वैल्यू 3 होगी, j की वैल्यू 2 होगी, k विल एग्जीक्यूट n टाइम्स। i की वैल्यू 3 होगी, j की वैल्यू 3 होगी, k विल एग्जीक्यूट n टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली आप इसको i इज इक्वल टू 4 के लिए कर सकते हैं, 5 6 7। लेट मी डू इट फॉर i इज इक्वल टू n। i इज इक्वल टू n के लिए j कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है? 1 टू i की वैल्यू क्या है? n, तो 1 टू n। ठीक है, और हर j की वैल्यू के लिए k एग्जीक्यूट कर रहा है आपका n n n n एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया अनरोलिंग। अब आपको टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सम ऑफ ऑल दीज। हर वैल्यू आई के लिए सम क्या होगा? उसका सम क्या होगा? आपका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं इसको पहले लिखती हूँ, आई की वैल्यू 1 थी। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ टाइम्स इट इज एग्जीक्यूटिंग, और यहाँ पर आई की वैल्यू है कि वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब 1 है, मतलब कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है? कर तो एक ही बार रहा है ना, 1 वैल्यू है, और नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? एक बार। उसके लिए जे कितनी बार चल रहा है? 1 से 1, मतलब एक ही बार चल रहा है। और उसके लिए के कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है? n टाइम्स। ध्यान से लिखेंगे। अब देखो, जब i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ टाइम्स तो i 1 ही चल रहा है ना, राइट। उसके लिए j कितनी बार चल रहा है? एक बार 1 के लिए चल रहा है, एक बार 2 के लिए चल रहा है, तो मतलब j इज एग्जीक्यूटिंग फॉर 2 टाइम्स, और फॉर दैट ऑल j k इज एग्जीक्यूटिंग n प्लस n 2n टाइम्स। ठीक है, i इज इक्वल टू 3 विच इज द वैल्यू, तो यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स तो 1 ही रहेगा। और k j चल कितनी बार रहा है? 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, मतलब 3 टाइम्स चल रहा है, और हर उसके लिए k कितनी बार चल रहा है? n टाइम्स। अब मैं अगर इसको n के लिए लिखूँ तो क्या लिखूंगी? I is equals to 1 time, J is executing n times, and for that J, K is executing n times. Sum कीजिए सबका. As you can see, n is the common term which I am taking out of the bracket. Now again in the bracket what is left is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n. What? N. Now you can just write n. What is this? Sum of n natural numbers, which is n plus 1 upon 2. Sum of n natural number will be n plus 1 upon 2. You can just multiply these things, which is n square plus n upon 2. If you will multiply the values, it will come in something like n cube plus n square by 2. Or n cube is the worst case, n cube is the greater one. Dominating one, the time complexity will be big of n cube. तो इस तरीके से आप इन डिपेंडेंट लूप्स को अनरोल कर सकते हैं और हर आई की वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं जे और के कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी।
यहाँ पर आई एग्जीक्यूट कर रहा है 1 to n, जे एग्जीक्यूट कर रहा है 1 to i स्क्वायर, दिस इज अ डिपेंडेंट लूप नाउ, और के एग्जीक्यूट कर रहा है 1 to n क्यूब, और एवरी टाइम के की वैल्यू क्या हो रही है, 5 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं देख लेती हूँ पहले i इज इक्वल टू 1 के लिए, i इज इक्वल टू 1 जब था उसके लिए जे देखो स्टूडेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, 1 के लिए करेगा, 2 के लिए करेगा, 3 के लिए करेगा, और 1 स्क्वायर के लिए करेगा, मतलब टोटली 1 टाइम ही करेगा, 1 to 1 स्क्वायर करेगा ना, विच इज 1 टाइम। और उसके लिए के कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है, के इज एग्जीक्यूटिंग, इस वाले लूप को समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या लिखा है 1 to n क्यूब एग्जीक्यूट करेगा, है ना, ये लिखा है ना n विच इज n क्यूब, तो 1 to n क्यूब एग्जीक्यूट करेगा, और हर बार वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, मतलब पहले के 1 के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू के इंटू 5, मतलब k की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर 5 इंटू 5 फिर 25 हो जाएगी, फिर 25 इंटू 5 फिर 75 हो जाएगी, एंड सो ऑन, और कब तक होगी, जब तक वैल्यू n क्यूब नहीं हो जाती। मैंने आपको बताया था कभी भी अगर टर्म किसी से, अब इसको k इज इक्वल टू के इंटू 5 को, इधर देखिए आप लोग, k इज इक्वल टू के इंटू 5 को मैं लिख सकती हूँ कि k इज इक्वल टू के अपॉन 5 लिख सकती हूँ ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरह एक्ट करते हैं। तो मैं इस k इज इक्वल टू के इंटू 5 को मैंने लिख दिया k इज इक्वल टू के अपॉन 5। कभी भी टर्म जब डिवाइड बाय 5 होती है, मतलब हर बार कितनी बार के लिए आपका हेलो डा प्रिंट हो रहा है, 5, जब तक आप इंक्रीमेंट करो, मतलब पहले 1 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 25 के लिए, फिर 75 के लिए, ऐसे प्रिंट हो रहा है। तो आपका क्या हो रहा है, हर बार वैल्यू डिवाइड बाय 5 हो रही है, तो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद होगा, अगर जिसने नहीं देखा है वो पहले वाले लेक्चर्स देख लेंगे, कि n की वैल्यू अगर n/2 होती थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी log n बेस 2, तो अगर n की k की वैल्यू k/5 है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, log n बेस 5 हो जाएगी। वो किस केस में होती थी, जब वैल्यू 1 to n एग्जीक्यूट करती थी। अगर यहाँ देखिए एक बार और, अगर वैल्यू 1 to n एग्जीक्यूट करती थी और हर बार वैल्यू n/2 होती थी, तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी log n बेस 2, ये थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, के वाले लूप में 1 to n क्यूब चल रहा है, ये 1 to n क्यूब चल रहा है, और हर बार वैल्यू n/5 हो रही है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, log n क्यूब बेस 5, क्या हो जाएगी, log n क्यूब बेस 5। मे बी यहाँ पे शायद कट हो रहा हो, यहाँ देखिए आप कि क्या हो जाएगी, 1 से n क्यूब तक अगर आपका लूप एग्जीक्यूट कर रहा है, हर बार वैल्यू n/5 हो रही है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, log n क्यूब बेस 5। तो ये जो लूप है थर्ड वाला, इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, log n क्यूब बेस 5। अब देखते हैं, i इज इक्वल टू 1 के लिए j एग्जीक्यूट करेगा 1 to i स्क्वायर विच इज ऑल्सो 1, एंड फॉर दैट k इज एग्जीक्यूटिंग log ऑफ n क्यूब बेस 5। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब एक बार और, i इज इक्वल टू 2, यहाँ पे और क्लैरिटी मिलेगी, j विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 1 to हाउ मेनी टाइम्स, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर, मतलब फॉर जे विल एग्जीक्यूट फॉर 1 2 3 एंड 4, एंड फॉर ऑल दोज, मतलब 1 फॉर आई इज इक्वल टू 2, जे विल इक्वल टू 1, के विल एग्जीक्यूट हाउ मेनी टाइम्स, log n क्यूब बेस 5 टाइम्स, आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 2, दिस इज फॉर 1। यहाँ पर थोड़ा सा और इसको क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेंगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 3, जे इज इक्वल टू 3, यहाँ 4, जे इज इक्वल टू 4, और for that k will execute log n base 5, log n cube base 5, log n cube base 5, right? Let's see for I is equals to 3, j will execute from 1 to I square की वैल्यू क्या है 9, तो जब i की वैल्यू 3 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, k कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, log n क्यूब बेस 5। जब i की वैल्यू 3 होगी, j की वैल्यू 2 होगी, k कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, log n क्यूब बेस 5, और कब तक, जब तक कि j की वैल्यू 9 नहीं हो जाती। अब आप इसी को टोटल टाइम लिखेंगे, जब हम इसको टोटल करेंगे तो कैसे होगा ये, देखिए ये हो जाएगा t ऑफ n, टोटल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा i इज इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ टाइम इज 1, फॉर दैट j इज एग्जीक्यूटिंग 1, एंड फॉर दैट k इज एग्जीक्यूटिंग log n क्यूब बेस 5, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, i is equals to 2 एक ही बार 1 टाइम, and for that j is executing how many times, for 1 2 3 and 2 square which is 4, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू यहाँ लिख सकते हैं हम, हर उसके लिए k एग्जीक्यूट कर रहा है log n क्यूब बेस 5, प्लस for I is equals to 3 which is also 1 time, for that j is executing 1 2 3 4 up to 3 स्क्वायर, तो मैं इसको लिख देती हूँ 3 स्क्वायर, और हर उसके लिए k is executing n क्यूब बेस 5, प्लस let's do it for k times, 1 into n square into log n क्यूब बेस 5, इन सबको सम कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसमें log
वाली टर्म जो है वो कॉमन है, मतलब log n क्यूब बेस 5 वाली टर्म कॉमन है। अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2 स्क्वायर, इसको भी मैं 1 स्क्वायर लिख रही हूँ, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, log n क्यूब बेस 5, अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, दिस इज द इनसाइड टर्म। अगर आप इसी को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटली आप यहाँ देख सकते हैं, इट विल बी, लेट्स सी, ये हो गया आपका log, टोटल टाइम कितना हो गया, log ऑफ n क्यूब बेस 5 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, n क्यूब बेस 5, ये हो गया n इंटू 2n स्क्वायर, मीन्स यू विल गेट अ टर्म विच इज, लेट्स से मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, और यहाँ लिख देते हैं हम 2n प्लस 1 अपॉन 6। दिस इज n क्यूब बेस 5, दिस इज 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। तो इसमें टर्म कौन सी आ रही है, बड़ी, n क्यूब, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करके और डोमिनेटिंग टर्म को लिख के n क्यूब लॉग n क्यूब बेस 5, ठीक है। सो ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ, और वी गो ऑफ n क्यूब डॉट log n cube base 5 is the time complexity for this particular algorithm. Okay, so this is how you can unroll the loops when it's a dependent loop. एक और देख लेते हैं, let's see, you have something like main, you have some for I is equals to n by 2 and I less than equals to n I plus plus, and one more nested loop which is, let's say, j is equals to 1 2, j is less than n by 2 and j plus plus, and let's say you have one more loop which is k is equals to 1 2, k less than equals to n, k is equals to k into 2। ये एक तीन नेस्टेड लूप्स हैं इसमें, और यहाँ पर लेट्स से मैंने लिखा है प्रिंट एफ हेलो। तो ये कितनी बार प्रिंट होगा हेलो वर्ड, फॉर दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देख सकते हैं आप, तीनों एक तो इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, सारे के सारे n की टर्म्स है, मतलब 1 to n चल रहे हैं या 1 to n by 2 चल रहे हैं, लाइक दैट। सो इफ यू विल सी इंडिपेंडेंट लूप, यू कैन जस्ट डायरेक्टली फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज लूप्स, और उसके बाद हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं आई वाले लूप की बात करती हूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं n by 2 से n तक। मान लेते हैं कि n की इनिशियल वैल्यू है 1024, तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा 1512 से लेके 1024 तक, है ना। पहले ही वैल्यू क्या हो गई है, बाई 2 हो गई है, मतलब पहली वैल्यू को डिवाइड करके एग्जीक्यूशन शुरू हुआ है, तो 512 से 1024 तक एग्जीक्यूशन होगा। जे वाला जो है वो आपका 1 से n by 2 तक, मतलब वो 1 से लेके n by 2 मतलब 512 तक एग्जीक्यूट करेगा। तो ये n by 2 टाइम्स के लिए कर रहा है, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये किसके लिए कर रहा है, n by 2 टाइम्स, कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, n by 2। और ये भी कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, हर बार वैल्यू क्या हो रही है, बाई टू बाई टू बाई टू, मतलब ये सॉरी हर बार वैल्यू क्या हो रही है, सिर्फ मतलब आधी वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करे, 1 से लेके 512 तक, तो ये भी n by 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। के वाला देखिए आप लोग, के वाला जो है वो 1 से लेके 1024 तक तो करेगा, लेकिन हर बार किस वैल्यू के लिए हेलो प्रिंट होगा, जैसे कि अगर पहली बार 1 के लिए हुआ, फिर 2 के लिए होगा, फिर 4 के लिए होगा, फिर 8 के लिए होगा, फिर 16 के लिए होगा, मतलब हर डिवाइड बाई 2, मतलब अगर 1024 वैल्यूज है तो आधी वैल्यूज के लिए प्रिंट होगा। इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकती हूँ, k इज इक्वल टू k बाई 2, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, विच इज log n बेस 2। तो अगर आप इस इंस्ट्रक्शन का देखोगे, इस वाले लूप का देखोगे, k इज इक्वल टू 1 to n, k इज इक्वल टू k इंटू 2, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n बेस 2 हो जाएगी। क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, तो आप अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के सिंपली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल टाइम अगर मैं लिखूंगी तो क्या लिख सकते हैं हम, n by 2 इंटू log n बेस 2। सो टोटली आप इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर बाई 2 log n बेस 2, विच इज big O of n स्क्वायर log n बेस 2। So this is how you can find the time complexity for independent loops and for dependent loops. Independent loops में आपको individual time complexity निकाल के multiply करना है, और dependent loops में आपको loops को unroll करना है।
ठीक है। सो ये तो हो गया इटरेटिव एनालिसिस एल्गोरिथम्स हम कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है, अगर आपके पास कुछ भी है n इज इक्वल्स टू n माइनस टू, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाती है। अगर आपके पास कुछ भी है n इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के साथ डिवाइड हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली log n उस बेस पे हो जाती है। अगर आपके पास अंडर रूट n कुछ आता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली log ऑफ log n बेस टू हो जाती है। So this is all the analysis for iterative algorithms. Thank you so much.